Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I am here with you with a new video for the new section, that is biology section, and the chapter is chapter number 8 in your textbook. The name is How do organism reproduce? कैसे नए organisms है वो अर्थ में आते हैं, उनके पीछे की प्रोसेस क्या है, इस सब के बारे में हम ये चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो ज़रूर से ये वीडियो को एंड तक देखिए. So this is the part 1 video. Let's continue the same. So what is reproduction and what is the importance for the same? So reproduction is an integral feature of all living beings. मतलब कि ये एक इंटरनल फीचर है, ठीक है, इंटरनल और समेटिव फीचर है. समेटिव मतलब ये सबके अंदर होगा, ठीक है, जिससे पूरा बॉडी बनता है, राइट. इट इज़ द इंटीग्रल मतलब कि मेन फीचर है सभी लिविंग बींग्स का. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स जैसे जनरेट होते हैं जो प्रोसेस से, ठीक है. जैसे ही नए इंडिविजुअल एक पेरेंट से बनते हैं तो वो प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन, जो फिजिकली देखने में सेम होते हैं बट केमिकली इंटरनली कुछ फर्क होता है डीएनए में, जीन्स में, राइट. बट फिजिकली दे मोस्टली अपीयर same as that of parents. So such process by which a new living organism is produced by an individual which possess physical characteristics same as that of parents is known as reproduction. Generally students, reproduction is classified into two types, that is asexual and sexual reproduction. In asexual reproduction either mother or father is involved, and here mother and father is involved. Mother and father contributes in order to generate new individual. Okay students, so I have shown the example for the same. Here as you can see that a single amoeba cell is given to you in which it is divided from the nucleus into two daughter cells, and as you can see the cytoplasm area is dividing, and at last one amoeba gives birth to two daughter cells. Okay, and here as you can see there is 50 chromosome in a parent cells, which is again total 50 in both chromosomes. इसमें भी 50 सेल्स होते हैं और इसमें भी 50 chromosomes होते हैं. So chromosome count is same. Okay students, now let's try to understand the reproduction that take place in humans. So as you can see from the female body, ovum, that is female gamete cell is released. Same way from the male body, sperm, that is male gamete cell is released. Both fuses in order to form a zygote. So this zygote will be having 46 chromosome, that is nothing but 23 chromosome, right. So how this 46 chromosomes is produced? Because 23 chromosomes is contributed by female body and 23 chromosomes is contributed by male body, and at last it fertilizes in order to form zygote, and from this embryo is produced. Okay, तो ऐसे होता है पूरा रिप्रोडक्शन. इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने क्लास 9 और क्लास 8 में पढ़ा होगा, तो थोड़ा मैंने ओवरव्यू दिया है. आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. Why reproduction is important? See, reproduction is important for each and every species. How? Because this is the only way for a living being to continue its lineage. What is the meaning of lineage? Generation को continue करने की यही एक प्रोसेस है. And the survival of species is possible. अगर रिप्रोडक्शन हुआ तभी वो स्पीसीज की पॉपुलेशन है वो एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगी. So this is the first point. Now let's come to the second point. It is also important in order to maintain the ecosystem. Ecosystem मतलब कि जो कॉम्बिनेशन होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव हो पाता है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस ऑफ वेरियस बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोसिस्टम. बायोटिक का मतलब जो लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें बैलेंस रखने में भी इकोसिस्टम में उसका मेजर रोल होता है. तो रिप्रोडक्शन हुआ तभी अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, और अगर अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे तभी फूड चेन हो, फूड वेब हो,
ठीक है, ये सब अच्छी तरीके से कंटिन्यू हो पाएगी, जिसके कारण पूरे साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी बैलेंस रहेगा और एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में भी बैलेंस रहेगा। सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। फर्स्ट हमने देखा जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। सेकंड हमने देखा कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, राइट। रिप्रोडक्शन ऑल्सो फैसिलिटेट्स इवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन के कारण ही तो इवोल्यूशन होता है। जैसे आप सबको मालूम है, हम बंदर में से आगे बढ़ते हुए कैसे मैन बने, आप देख सकते हो। दिस इज अ मॉडर्न मैन, राइट, एंड दिस इज अ प्रिमिटिव मैन, दिस इज अ प्रिमिटिव मैन। सो हाउ दिस जर्नी हैज gone because of reproduction, because variations comes through reproduction. Variations of DNA कब होगा? जब reproduction process होगी तभी variation of DNA होगा। जब दो DNA स्टूडेंट्स, दो इंडिविजुअल से कंबाइन होंगे तभी तो कुछ वेरिएशन आएगा DNA कॉपिंग करते वक्त, तो उसके कारण वो जनरेशन में इवॉल्व होते हुए आ सकता है, ठीक है। जैसे हम मंकी में से ह्यूमन बने, ठीक है। सो आई होप आप सबको इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, so you get regular updates for the video. Now you can see students, for organism, in order to look similar, reproduction involves making copies of the blueprints of the body design or DNA. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फिजिकली सिमिलर कब हो सकता है? जब एग्जैक्ट कॉपी जो पेरेंट की बनती है तो, या फिर उसके डीएनए की कॉपिंग होगी, तभी ये प्रोड्यूस होगा। जैसे आप देख सकते हो, मिटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखाया है। मिटोसिस में एक पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल में ही डीएनए बनते हैं। देखो ये क्रोमोसोम्स है, आप देख सकते हो, ये है क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स जो है स्टूडेंट्स, वो क्रोमोसोम्स मिल के बन गए डीएनए रेप्लिकेट्स। तो डीएनए रेप्लिकेट्स हुआ, उसके बाद इसका ही फर्दर डिवीजन हुआ दो पार्ट में, जिसके कारण हुए 2 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस यहाँ तक सही में देख सकते हो आप, 2 डॉटर सेल बने, 2 डॉटर सेल में से अगेन 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो 4 डॉटर सेल्स होंगे, ठीक है। सो इन दिस वे mitosis and meiosis are different from each other, but the point that we have understood is that there must be a process called DNA replication in order to have a new organism having the same physical characteristics as that of parent organism. Cell uses chemical reaction to build copies of their DNA. Chemical reaction का यूज करते हैं DNA की कॉपी को बनाने के लिए। For supporting the DNA, organized cellular structure for maintaining life process is created and 2 independent cells are generated. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 independent cells, जिसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। सेल यूजेस केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ डीएनए। इसमें केमिकल रिएक्शन होगा जिसके कारण डीएनए की कॉपीज जनरेट होगी, और वो ही डीएनए को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वो डीएनए को सपोर्ट करने के लिए एक डीएनए वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में, ये प्रोसेस का नाम है मिटोसिस, याद रखना। और अगर एक ही डीएनए रेप्लिकेशन के एक सेल के में से अगर आपको 2 सेल मिलते हैं और वो 2 सेल फर्दर डिवाइड होके और 2 सेल बनाते हैं, जिसके कारण 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, तो उसको मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस। मिटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनेंगे। इसमें 2 और इसमें 4 डॉटर सेल। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, मतलब एक्यूरेट कोई भी नहीं होता है। आप नहीं बोल सकते हो कि एग्जैक्टली सेम होगा उसके पेरेंट जैसा। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जा रहे हैं। डीएनए कॉपिंग, वेरिएशन एंड इवॉल्विंग। कॉपिंग हमने देख लिया। वेरिएशन मतलब जो डीएनए में कॉपिंग के वक्त जो चेंज आएगा, जिसके कारण एक नया ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। और इवोल्यूशन मतलब देयर इज अ चेंज इन अ फिजिकल बॉडी इन सम और द अदर वे, लाइक इन प्रिमिटिव मैन द स्किन कलर वाज लाइक ब्राउनिश टाइप एंड नाउ इट्स फेयर, सो दिस इज example of evolution. Okay, so DNA contains the information or blueprint about body design. Body design की सभी blueprint है वो कहाँ पे होता है? वो होता है डीएनए के अंदर। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। इफ इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। इफ इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर आपने इंफॉर्मेशन चेंज किया तो अलग अलग प्रोटीन्स है वो बन जाएंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स विल लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। अलग अलग प्रोटीन है वो
अलग अलग बॉडी डिज़ाइन बनाते हैं। इसलिए सभी ह्यूमन बींग्स हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन भी कैसा होता है, अलग होता है, राइट। दो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बट सम आर फैट, सम आर थिन, सम आर हाइटेड, सम आर टॉलर, सम आर शॉर्टर। सो वाई? बिकॉज the reason is same, that the DNA structure is different for each and every individual, right? Now let's move to the further page, that is, hence although the DNA copies generated will be similar, they may not be identical to original. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है, और ये म्यूटेंट कॉपी है, ये करेक्ट कॉपी है और ये म्यूटेंट कॉपी। आप देख सकते हैं जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। Some of these variation might be so drastic, the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherit मतलब उनको जो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है वो एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण नए जो सेल्स, नए जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए मर जाएंगे। इन शॉर्ट, वो न्यू बॉर्न डाई हो जाएगा, ठीक है। However, there will be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. पर कई सारे ऐसे वेरिएशन होते हैं जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि उनका जीन कंट्रोल बहुत अच्छा होता है जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और देखो जीन्स के ऊपर भी, जैसे आपको मालूम है पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन है, वो ग्रोथ हार्मोन को, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। अगर वो ज़्यादा सीक्रेशन करता है तो वो ऑर्गेनिज्म टॉलर हो जाएगा, और कम सीक्रेट करेगा क्योंकि उसके अंदर कम प्रोटीन आया है तो वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चेंज ड्रास्टिक चेंज नहीं थे, वो स्लो चेंज थे जिसके कारण नया ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाया और उसने चेंज एडॉप्ट कर लिया। पर अगर सेल्यूलर एपरेटस में जो चेंज हुए वो बहुत ही फटाफट होते हैं, फास्ट होते हैं, तो उससे ऑर्गेनिज्म है वो मर सकता है। The surviving cell are similar to but subtly different from each other. The inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. एक ऑर्गेनिज्म की सेल्फ कैपेबिलिटी कितनी है जिसके कारण वो वेरिएशन को सस्टेन कर पाएगा, और अगर वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म में हुआ तभी उसका बॉडी है वो इवॉल्व हो पाएगा, अलग हो पाएगा, राइट। मे बी आफ्टर 1000 to 2000 years we might be looking different from now. So that is nothing but an example of evolution, because we all have survived the variation that is occurring right now. That's why we have evolved. Okay, so now what is the importance of consistency and variation? तो consistency का मतलब क्या है कि जो भी डीएनए पेरेंट में था वही चाइल्ड में आया, ठीक है, तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब सेम रहना, ठीक है। और वेरिएशन का मतलब आप सब जानते हो। कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर डीएनए कंसिस्टेंट नहीं है तो बॉडी डिज़ाइन है उसमें बहुत सारा चेंज आ सकता है। होपफुली आप सबको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू यूज़ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और नीच। तो डीएनए कॉपिंग करते वक्त जो नए ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए वही सेम पेरेंट के आते हैं, तो वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को या फिर पर्टिकुलर नीच को आराम से एडॉप्ट कर पाएंगे। हाउएवर नीचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। नीचेस है वो चेंज हो सकते हैं क्योंकि नीचेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फूड हमें जो मिलता है एनवायरनमेंट से वही हमें खाना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अगर डीएनए कॉपी जो पेरेंट में से बनी है, ये पेरेंट की डीएनए कॉपी है और ये चाइल्ड की डीएनए कॉपी है, ठीक है, ये पेरेंट की है, इससे जो ये डीएनए कॉपी बनी वो ये दोनों को कंबाइन होकर जो डीएनए कॉपी यहाँ पे बनी है वो डीएनए कॉपी है, वो उसका स्ट्रक्चर अगर इसके जैसा है तो ही वो एक पर्टिकुलर नीच में सर्वाइव कर पाएगा। नीच मतलब आप सोच सकते हो क्या क्या फैक्टर्स है, हैबिटेट, बिहेवियर्स, फीडिंग मतलब फूड ईटन बाय और इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ठीक है, ये सभी नीचेस के फैक्टर हैं। इफ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेर सूटेड टू पर्टिकुलर नीच एंड इफ द नीच इज ड्रास्टिकली अल्टर्ड, अगर ये फ्रॉग है वो जहाँ पे भी रह रहा है वो एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा तो फ्रॉग मर जाएगा। जैसे क्लाइमेटिक चेंज में कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वेर प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल, पर अगर थोड़े बहुत फ्रॉग ऐसे हैं कि जो ये क्लाइमेट चेंज को भी रेजिस्ट कर पाएंगे तो वो सर्वाइव करेंगे। वाई? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द
जो फ्रॉग है वो बहुत ही अलग है, बहुत शक्तिशाली है, उसको ये सब टेम्परेचर चेंज से कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सभी पॉपुलेशन में सेम डीएनए नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग ए डीएनए कॉपी, ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड इवॉल्व लेटर ऑन। ओके स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट पेज है, बोर नहीं हुए होंगे आप सब। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वेर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ हाई टेम्परेचर वाटर्स, इफ वाटर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, CO2 का प्रोपोर्शन बढ़ा, वाटर टेम्परेचर बढ़ा, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, बट फ्यू वेरिएंट्स, थोड़े बहुत है वो बच जाएंगे। They will be resisting the heat and survive and grow further. Variation is thus useful for survival of species over time, even if it is not good for individual. Variation है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, वरना तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाती। बट ड्यू टू वेरिएशन सम ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव एंड दे कंटिन्यूज द जनरेशन, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, दैट each and every individual are not same. Some are having different DNA due to which they have a good resistance property. That's why they evolve later on, they can change the body design. So this was all about variation, reproduction is importance. So hopefully वो आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।